Hi, welcome to my channel Simplified Psychopathology. This is Ritvik Sharma, your host. If you have not seen my last video on introduction of feeding and eating disorder, please go ahead and check that video. Like and subscribe my channel if you have not done that. In my this video, I will talk about eating disorder, which is not discussed as compared to anorexia or bulimia, that is pica. In this video, I will talk about symptoms and signs of pica, diagnosis of pica, and treatment of pica. So, if you're getting questions like, I can't stop chewing on ice, why am I craving dirt? I know I shouldn't be eating this, but I can't help it. And why this is happening. If you know someone having these thoughts or feeling, or if you are having these thoughts or feeling, you might be suffering from pica disorder. So let's talk about pica. What is pica? Pica is an eating disorder where a person compulsively eats things that are unfood and don't have any nutritional value or purpose. So that was the question which I was talking about: eating ice, eating dirt, and you're thinking and you're not able to change that habit. Depending on when and why a person does this, pica can be normal, expected, and harmless. कभी कभी नॉर्मल भी हो सकता है और कभी कभी हार्मलेस भी हो सकता है. However, it can cause major problems if a person with this condition eats something toxic or dangerous. If you're eating toxic or dangerous thing like paint tins, or if you're eating like something which is toxic, which is poisonous, like, and it would be dangerous for you. Let's see others. What to know about pica? Pica is an eating disorder marked by eating non-food items, which I told you. It can cause stomach upset, teeth injury, and lead poisoning. It most commonly seen in childhood, but can occur in adulthood as well. Children who under two are not diagnosed with pica. Under two are not diagnosed with pica. Okay. Then आगे चलते हैं. Who does pica affect? किसको किसको पाइका अफेक्ट करता है? पाइका कैन हैपन टू एनीवन एट एनी एज, बट टेंड्स टू हैपन इन थ्री स्पेसिफिक ग्रुप्स पीपल. स्पेसिफिक ग्रुप तीन है जिनको होता है. यंग चिल्ड्रन में हो सकता है, छोटे बच्चों में हो सकता है, स्पेशली दोज अंडर 6 ईयर्स. 6 ईयर्स से जो कम होते हैं उनमें 25 to 35% प्रिवेलेंस है. पीपल हु आर प्रेग्नेंट, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उसमें 68% लोगों में होता है. पीपल विद सर्टेन मेंटल हेल्थ कंडीशंस, और जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ सकता है उसमें भी आपका, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो लोग हो सकते हैं उसमें भी पाइका होता है. ठीक है. अब आते हैं. हाउ कॉमन इज पाइका? पाइका इज रिलेटिवली कॉमन कंडीशन, बट एक्सपर्ट्स आरंट श्योर हाउ कॉमन इट इज. ठीक है. दैट्स पार्टली बिकॉज रिसर्च स्टडीज ऑफन डोंट यूज द सेम डेफिनेशन फॉर दिस कंडीशन. It is also common for healthcare providers to miss the condition entirely. This can happen when people don't tell their doctor about it or don't report signs. अब लोग बताते नहीं है कि हम ऐसी चीजें खाते हैं जैसे डर्ट खा रहे हैं, या फिर ऐश खा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी और चीजें खा रहे हैं, तो लोग बताते नहीं हैं, और इस वजह से इसके कोई साइंस नहीं आते, इसलिए डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल पाता ही पाइका ऐसा डिसऑर्डर है. ठीक है. जब न्यूट्रिशन वैल्यू आती है और बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं लग रहे होते, तब पता चलता है आपके अंदर पाइका डिसऑर्डर लाई कर रहा है. How does this condition affect my body? Pica is a condition where a person compulsively eats things that are unfood and don't have any nutrition value. जो वो फूड खा रहे हैं जिसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है. बिकॉज इट इज कंपल्सिव, ओसीडी की तरह यहाँ पे भी कंपल्शन आ रहा है. तो यहाँ पे कंपल्शन रहेगा बंदे को, और बार बार थॉट्स आएंगे कि मैं उस फूड को खाऊं, और मैं आई शुड ईट दैट फूड. पीपल विद दिस कंडीशन हैव अ वेरी हार्ड टाइम कंट्रोलिंग द अर्ज ऑन देयर ओन. वही चीज है ओसीडी की तरह, बार बार रुमिनेशन होगा थॉट का, बार बार हम लोग जाएंगे. पीका कैन हैव अ वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट नॉन फूड आइटम्स अ पर्सन ईट्स. फॉर पीपल हु ईट थिंग्स लाइक आइस, आइस भी हो सकता है. प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट पीपल के लिए पीका इज हार्मलेस. फॉर अदर्स इट कैन लीड टू ईटिंग डेंजरस और टॉक्सिक आइटम्स. अब प्रेग्नेंट वुमेन में जैसे कभी कभी आयरन की डेफिशिएंसी होती है, या फिर वो या फिर जिंक की डेफिशिएंसी होती है, तो वो ऐसे कुछ हार्मलेस चीजें खा सकते, हार्मफुल चीजें खा सकते हैं, जैसे ऐश हो गया या फिर और भी चीजें हो गई. तो वो ये चीज और या चौक खाती हैं, तो जिससे उनका आयरन डेफिशिएंसी में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, नोजिया और वॉमिटिंग में दिक्कत नहीं होती है.
ठीक है। और आपका ये सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स में भी होता है कि यहाँ पे बच्चे आपका डर्ट खाते हैं, जो कि इंडिया में, रूरल इंडिया में लिखा गया है कि आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। बट अगर आप पेंट स्टेन्स खाएंगे बच्चे, तो वो दैट वुड बी टॉक्सिक एज। ओके। अब यहाँ आगे आते हैं, मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स में क्या होता है। पीपल विद पाइका often feel embarrassed or ashamed about this condition. Because of this, people with this condition often don't seek treatment or are often afraid to open up about it to their healthcare provider. Because what happened, people with pica often feel embarrassed because कुछ भी खा रहे हैं, that is not a nutrition value, and that is also not food. That is why people with pica feel embarrassed feel करते हैं। because of this, people with this condition often don't seek treatment। जब embarrassed feel करेंगे तो डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगे, और फिर ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। फिर इसी वजह से डॉक्टर्स के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इस डिसऑर्डर की वजह बारे में। What are the symptoms of pica? The sole symptom of pica is compulsively eating things that aren't food or no nutrition value or benefit. ये भी पहले भी बात करी गई है। Most people with this condition prefer a single type of non-food item they eat। ठीक है। जो जो एक बंदे को जिसको इसको पाइका है, जैसे सिंगल फूड प्रेफर करेंगे, जैसे कोई आइस प्रेफर कर सकता है, जैसे कोई आपका डर्ट प्रेफर कर सकता है, तो एक सिंगल फूड आइटम जो कि नॉन फूड आइटम होगा उसको प्रेफर करेंगे खाने का। हाउएवर पाइका कैन कॉज अदर कंडीशन और इश्यूज, या अदर कंडीशन इश्यूज भी हो सकते हैं। अदर कंडीशन दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ पाइका इज एनीमिया, एस्केरियासिस, राउंडर इन्फेक्शन क्योंकि डर्ट खा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, इरेगुलर अर्थ रेट हो सकते हैं, रिथीमिया, लेड पॉइजनिंग हो सकती है कि आप कुछ भी खा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का ब्लॉकेज हो सकता है क्योंकि आपको खुद नहीं पता आप खा क्या रहे हो। फिर कॉमन नॉन फूड आइटम्स विच पीपल विद पाइका ऑफन ईट द फॉलोइंग। कॉमन नॉन फूड आइटम्स में क्या क्या खा सकते हैं। ऐश खा सकते हैं, बेबी और टैल्कम पाउडर, चॉक, चारकोल, क्ले, डर्ट, सॉइल, कॉफी ग्राउंड्स खा सकते हैं, एक्शेल्स खा सकते हैं, फीसेस, पूप ऑफ एनी काइंड, हेयर स्ट्रिंग और थ्रेड, आइस, लॉन्ड्री स्टार्च, पेंट चिप्स, पेपर, पेबल्स, पेट फूड, वूल और क्लोथ। ये सब आप कॉमन नॉन फूड आइटम्स है जो पाइका में लोग खाते हैं। व्हाट causes पाइका कल्चर और लर्न बिहेवियर। जैसे यहाँ पे रूरल इंडिया में छोटे बच्चे अगर डर्ट खा रहे हैं तो उसको आपका डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लोग लोग बोलते हैं कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है। और घाना में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर आप छोटे बच्चे अगर डर्ट खा रहे हैं या फिर चौक खा रहे हैं तो दे शोज दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। स्ट्रेस और एंजाइटी, एंजाइटी की वजह से भी प्रेग्नेंट वुमेन खाती हैं। नेगेटिव कंडीशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में अगर आप नेगेटिव कंडीशंस हैं और सही हैबिट्स फॉलो नहीं हो रही हैं, और बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं पेरेंट्स, और इफ द children are eating anything then can also happen। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, अगर आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसीज है, जिंक की डेफिशिएंसीज है, calcium की deficiency then these things can occur। mental health condition, medical condition, pregnancy and sickle cell anemia are two condition which have that have connection to this disorder। so प्रेगनेंसी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात कर चुके हैं। जैसे आयरन का लो आयरन होता है, एनीमिया होता है, फिर उस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं इस डिसऑर्डर की। हम कुछ भी खाते हैं, pregnant woman, that is related to pica। How is pica diagnosed? Diagnosing pica requires four criteria। क्या क्या criteria है पर pica diagnose करने के लिए। Time, mental development, social cultural factors and medical health conditions। अब इसमें टाइम में क्या है, द डायग्नोसिस रिक्वायर्स persistent eating times or items or substance with no food or nutrition। persistent होना चाहिए एटलीस्ट 1 मंथ के लिए नॉन फूड आइटम्स का। mental development, this means a person has developed past a certain point mentally and should know not to eat things that aren't food or have no nutritional value। अब इसमें यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट में पेशेंट को पता भी है तभी वो खा रहा है। नो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, दिस मींस द पर्सन डजंट हैव सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड रीजन टू एक्सप्लेन द बिहेवियर। क्या उसके पास अपने रीजन है एक्सप्लेन करने के लिए क्यों वो ये नॉन फूड आइटम्स खा रहा है या फिर नहीं है। नो मेडिकल और मेंटल हेल्थ कंडीशन, दिस मींस pica is not happening because of any mental health condition or because of any other condition। पाइका इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ एनी अदर कंडीशन, ये भी आपको देखना पड़ेगा।
रीजंस टू नॉट डायग्नोज पाइका, अब आपके रीजंस क्या आते हैं जो पाइका जिससे नहीं डायग्नोज होता है? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज बिकॉज ऑफ द आयरन एंड जिंक। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के एक रीजन है जिससे पाइका डायग्नोज नहीं करते हैं कभी कभी। अदर मेडिकल और मेंटल हेल्थ कंडीशन, जैसे आपका प्रेग्नेंट वुमेन है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, तो उस वजह से। और भी जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उस वजह से हम इसको डायग्नोज नहीं हो पाता है पाइका। कल्चरल और सोशल प्रैक्टिसेस, जैसे कल्चरल सोशल प्रैक्टिसेस में बच्चे इंडिया में रूरल एरियाज में क्या होता है कि वो डाइट खा लेते हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड दैट इज हेल्पिंग फॉर डाइजेशन एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे कल्चरल सोशल प्रैक्टिस में वो टाबू नहीं है, तो दैट इज वाई इट इज नॉट कमिंग इन टू डायग्नोज पाइका। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? व्हाट टेस्ट विल बी डन टू डायग्नोज पाइका, जिसमें ब्लड, यूरिन, पी एंड स्टूल टेस्ट होता है, इमेजिनिंग टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। ठीक है, अब आपके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में क्या आएगा? माइल्ड एवर्जन थेरेपी आ सकती है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स टीचिंग पीपल टू अवॉइड पाइका बिहेवियर यूजिंग माइल्ड एवर्जन। ये पेशेंट को बताया जाएगा कि टीच पीपल टू अवॉइड नॉन फूड आइटम्स एंड पॉजिटिवली रीइंफोर्सिंग हेल्दी ईटिंग बिहेवियर। पेशेंट को बताया जाएगा कि नॉन फूड आइटम्स है, इनको नहीं खाना है, और हेल्दी ईटिंग बिहेवियर्स उनको सिखाया जाएगा। बिहेवियरल थेरेपी में दिस थेरेपी मेथड इन्वॉल्व्स टीचिंग अ पर्सन coping mechanism and strategies to help them change their behavior। इसमें coping mechanisms सिखाए जाएंगे to help them change their behavior। differential reinforcement एक तरह की थेरेपी। in this method people learn to avoid pica by focusing other फूड आइटम्स। इसमें भी डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, कि अगर आप एक नॉन फूड आइटम्स खा रहे हो तो उसको रीइंफोर्समेंट में दूसरा फूड आइटम्स क्या आपको हेल्प कर सकता है उस समय, और आपको रीइंफोर्स कर सकता है उस बिहेवियर और एक्टिविटीज को चेंज करने के लिए। सो ये थेरेपीज हैं जो मैनेजमेंट जिससे मैनेज कर सकते हो पाइका को और ट्रीट किया जाता है। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट rumination disorder and it will be live in this week only। So thank you for watching this video on pica disorder। So we will talk more about feeding and eating disorder in my next video, and we will talk about rumination disorder in my next video. If you have any problems about this video, please contact me in comment box, and please like and subscribe my channel. If you find any problems with my channel, you can contact me on my comment box. Thank you.